Hello everyone, welcome to Love Dentistry Dental Education channel. I am Raghav Jagdi and today we're going to study about the most important topic of hematology named as anemia. In this lecture we have divided into three main parts: the introduction of anemia, the classification of anemia and the signs and symptoms of anemia. So let's get started with the topic of introduction of anemia. So anemia is basically a blood disorder which is characterized by reduction in RBC, reduction in hemoglobin एंड रिडक्शन इन पैक्ड सेल वॉल्यूम. सो एनीमिया हमारा एक वो ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर आरबीसी का रिडक्शन होता है, हेमोग्लोबिन का रिडक्शन होता है एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम का रिडक्शन होता है. एनीमिया ब्लड डिसऑर्डर जो है इसका बहुत ही वाइड आइडियोलॉजी है. इट कैन बी इनहेरिटेड टू, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ एनीमिया वो भी होता है एंड मैनी मोर. So regarding the classification of anemia, in the classification of anemia is classified on the basis of two main methods: the morphological method of classification, second etiological method of classification. About the morphological method of classification, the anemia is classified on the basis of color and size of RBC, on the basis of color and size of RBC, on the basis of MCV and MCHC. MCV stands for mean corpuscular volume and MCHC stands for mean corpuscular hemoglobin concentration. So as I have told you कि जो हमारा morphological method of classification है that depends upon the color and size of the RBC. So regarding that हमारे four main types of anemia होते हैं: normocytic normochromic, macrocytic normochromic, macrocytic hypochromic and microcytic hypochromic. So first is normocytic normochromic. Normocytic normochromic मतलब normal size, normal color as the name suggests. Second is second is macrocytic normochromic. As the name suggests, large size of the RBC, larger size of the RBC and normal color. Third is macrocytic hypochromic. So large size of the RBC and paler color. Hypochromic is paler color. And fourth is microcytic normochromic. Small size of the RBC, small size of the RBC, small size of the erythrocytes and paler color, microcytic hypochromic. So these are the four main types of anemia according to the morphological method of the classification. Now etiological method of the classification, we have five main types: the hemorrhagic anemia, the hemolytic anemia, the nutritional deficiency anemia, the aplastic anemia and the anemia related to the chronic diseases. So let's get started with the hemorrhagic anemia. हेमरेज का मतलब क्या होता है? हेमरेज का मतलब होता है द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड. सो एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज हेमरेजिक एनीमिया. वो एनीमिया जिसमें ब्लड के लॉस होने से जो एनीमिया होता है दैट इज हेमरेजिक एनीमिया. अब हमें हेमरेजिक एनीमिया जो होता है हमारा, उसके दो मेन टाइप्स होते हैं: acute hemorrhagic anemia and chronic hemorrhagic anemia. As the name suggests, acute hemorrhagic anemia जो होता है हमारा, the acute hemorrhagic anemia that lasts for the shorter period of the time, and chronic hemorrhagic anemia lasts for the longer period of the time. Shorter period of the time acute and chronic is larger period of the time, longer period of the time. acute hemorrhagic anemia के अंदर बेसिकली हमें इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं: पर्सन है जिसको एक एक्सीडेंट हो चुका है, उसका काफ़ी ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो रहा है ब्लड का एंड उसको काफ़ी ज़्यादा वूंड्स, उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वूंड्स एंड चोटें लग चुकी हैं. इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है. उस ब्लीडिंग के कारण जो उसको ब्लड लॉस हुआ, इस कारण जो आरबीसी लॉस हुआ एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए, दैट इज़ acute hemorrhagic anemia. And chronic hemorrhagic anemia, the chronic hemorrhagic anemia that lasts for a longer period of the time, means इंटर कुछ डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया जिसके अंदर ब्लीडिंग, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती जा रही लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, जिससे हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा. हेमोग्लोबिन कम होने से जो chronic hemorrhagic anemia के अंदर जो आरबीसी का बेसिकली होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. आरबीसीज होंगे बेसिकली माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक इन chronic hemorrhagic anemia, and in acute hemorrhagic anemia it will be normocytic normochromic. So this is about the hemorrhagic anemia. Now come to the second type of the anemia, hemolytic anemia. So have you listened about the hemolysis? Hemolysis क्या होता है? Hemolysis is basically the destruction of the red blood cells, the destruction of the erythrocytes, the destruction of the red blood cells is called as hemolysis. सो हीमोलाइसिस की वजह से जब आरबीसी का रिडक्शन होगा, हीमोलाइसिस की वजह से जब एनीमिया होगा तो उस एनीमिया को हम बोलेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया. हीमोलाइटिक एनीमिया के हमारे जो है मेनली टू टाइप्स हैं. हमारा एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया एंड इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया. एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर जब आरबीसी के बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरबीसी हेमोलिसिस, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया. एंड intrinsic hemolytic anemia के अंदर when RBC itself is responsible for destroying itself, then it is called as intrinsic
listen to that it is called as intrinsic hemolytic anemia. एक्सट्रिंसिक के अंदर बाहर के आरबीसी के बाहर के जितने भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके हिमोलिसिस के लिए, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक. एंड इंट्रिंसिक के अंदर जब आरबीसी खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने डिस्ट्रक्शन के लिए, दैट इज़ इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया. एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर कुछ रीनल फेलियर, लिवर प्रॉब्लम, कुछ बर्न्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उस वजह से जो हेमोलाइसिस हो रही है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो हेमोलाइसिस हो रही है आरबीसी की, दैट इज़ एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया. इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर जैसे कि मैंने बताया आरबीसी खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके अंदर कुछ हमारे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया आर मेनली इन दीज टू मेन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है. इसके अंदर आरबीसी खुद रिस्पॉन्सिबल है. आरबीसी की कुछ जैसे सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी की शेप जो होती है वो सिकल सेल हो जाती है. उस सिकल सेल की वजह से मतलब आरबीसी की शेप के अंदर खुद ऑल्ट्रेशंस हो रहे हैं और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो रहा है अपने डिस्ट्रक्शन के लिए. दैट इज़ इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया लाइक इन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया. सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया पे मैं अलग पोस्ट एंड अलग एक कंटेंट मैं ट्राई करूँगा डिज़ाइन करने के लिए. बट अभी हम चलते हैं अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एनीमिया के अंदर. हमारा जो ब्लड है, हमारा जो आरबीसी है, इसके बनने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है लाइक विटामिन B12, लाइक आयरन, लाइक प्रोटीन एंड फॉलिक एसिड एक्सेट्रा. सो इनकी कमी से जो इन ऐसे न्यूट्रिशन की कमी से जो एनीमिया हमारा कॉज होगा जिसके अंदर आरबीसी के रिडक्शन होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया. सो फर्स्ट हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर. अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी. जब आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा. सो आरबीसी विल बी माइक्रोसाइटिक इन हाइपोक्रोमिक इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. इन प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया द आरबीसी विल बी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. इन पेरिनीशियस एनीमिया. सो पेरिनीशियस एनीमिया क्या होता है? पेरिनीशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 का कमी हो जाता है. सो विटामिन B12 की कमी की वजह से द आरबीसी विल बी मैक्रोसाइटिक एंड इट विल बी हाइपोक्रोमिक टू एंड नॉर्मोक्रोमिक टू. सो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि पेरिनीशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 का कमी हो जाता है. इसके अंदर बेसिकली द इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए. विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है. बट इंट्रिंसिक फैक्टर का रिडक्शन हो जाता है, उसका अमाउंट रिडक्शन हो जाता है. जब वो रिडक्शन हो जाएगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, देन पेरिनीशियस एनीमिया इज कॉज्ड. जब हम पढ़ते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर इट्स फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है. फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है एंड आरबीसी इज इन मेगलोब्लास्टिक शेप. मेगलोब्लास्टिक शेप के हो जाते हैं, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिससे हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है. पेरिनीशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है एंड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है. सो दिस अब हम चलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया पे. एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर जब बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, वी नो दैट बोन मैरो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमेटोपोइसिस एंड एरिथ्रोपोइसिस टू. सो अब जब बोन मैरो के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, जब बोन मैरो में प्रॉब्लम हो जाएंगी तो आगे फर्दर एरिथ्रोसाइट्स नहीं बन पाएंगे, आगे फर्दर आरबीसी नहीं बढ़ पाएंगे, जिससे आरबीसी का रिडक्शन हो जाएगा और उससे जो एनीमिया हमारा कॉज्ड होगा, दैट इज़ एप्लास्टिक एनीमिया. इन एप्लास्टिक एनीमिया टू हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनका बनना बंद हो जाता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आरबीसीज हैं उनके शेप और कलर तो बिल्कुल नॉर्मल है. सो इट विल बी नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक. अब हम बात करते हैं अपने द एनीमिया ड्यू टू द क्रॉनिक डिजीज. सबसे मैं इसमें इसको समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, लाइक CKD, द क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और द क्रॉनिक रीनल फेलियर. जब क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है तो इससे क्या होगा? क्रॉनिक रीनल फेलियर से होने से एरिथ्रोपोइटिन का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा. एरिथ्रोपोइटिन का जब अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो एरिथ्रोपोइटिन वी नो इट इज़ अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द किडनीज विच रेगुलेट एरिथ्रोपोइसिस. जब एरिथ्रोपोइटिन का अमाउंट कम हो जाएगा तो एरिथ्रोपोइसिस रेगुलेट नहीं हो पाएगी, एरिथ्रोपोइसिस हो नहीं पाएगी, जिससे क्या होगा? आरबीसी फर्दर नहीं बन पाएंगे, जिससे क्या होगा? रिडक्शन होगा आरबीसी का. सो ड्यू टू एनी क्रॉनिक डिजीज़ जब आरबीसी का रिडक्शन हो रहा है, लाइक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर एरिथ्रोपोइटिन कम हो जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस का रेगुलेशन नहीं होगा, आरबीसीज कम हो जाएंगे और इस वजह से जो एनीमिया हमारा कॉज होगा, इट इज़ दैट एनीमिया कॉज ड्यू टू सम क्रॉनिक डिजीजेज इज कॉल्ड एज mainly called as anemia due to any chronic diseases. So this is the main five types on the basis of etiological method of the classification: the hemorrhagic anemia, the hemolytic anemia, the nutritional deficiency anemia, the aplastic anemia, and anemia due to chronic diseases.
सो अब हम आते हैं अपने थर्ड मेन टॉपिक पे, दैट इज़ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एक एनीमिक पर्सन के अंदर आपको कैसे क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, क्या क्या आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे। अगर मैं एक एनीमिक पर्सन हूँ तो मेरा जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाएगा, स्किन के हेयर्स बहुत ड्राई हो जाएंगे, नेल्स जो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आपके ड्राई हो जाएंगे, हेयर बहुत ड्राई हो जाएंगे, हेयर विल बी मोर ग्रेइश एंड आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, आपको एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग एंड किडनी प्रॉब्लम्स भी होंगी, लाइक प्रोटीन इन यूरिन एंड प्रोटीन का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्टर होना शुरू हो जाएंगी। सो और हमारी जो स्किन जो होगी, जो मेनली हमारी स्किन है, दैट विल बी मोर पेल हो जाएगी। अब हमारा एनीमिया वी नो दैट ना कि हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, आरबीसी का कमी हो जाता है। जब हेमोग्लोबिन एंड एरिथ्रोसाइट्स का कमी हो जाएगा, जब इनका रिडक्शन हो जाएगा, जब हेमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसीज नहीं होंगे, तो रेडिश कम होगी, साइड जो होगी, जो हमारी स्किन जो होगी वो बहुत ज़्यादा पेलर हो जाएगी। सो इसी से ही हम पहचान सकते हैं, इन्हीं क्लिनिकल फीचर से हम पहचान सकते हैं दैट सामने वाला बंदा जो है दैट इज़ एनीमिक। So this is all about anemia, the blood disorder in which there is a reduction of red blood cell, reduction of hemoglobin and the reduction of packed cell volume. So ये है हमारा एनीमिया के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So please hit a like to this video and do share this video. Thank you very much.